देखो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल। ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर कंसेप्ट पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स की। ओके, बेसिक ऑलरेडी हमें पता है कि एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टेल मी व्हिच आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ So एंगल्स। may I tell? यस जी। Obtuse angle, acute angle, right angle. ओके, अगेन दैट मच ओनली। 0 डिग्री एंगल। Yes, sir. Yes, a reflex angle. हाँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री मीन स्ट्रेट एंगल, राइट? Yes, स्ट्रेट एंगल मीन्स 180। Then yes, reflex angle more than 180, we can say it is reflex angle. And complete angle 360 degree. 360. हाँ, so these are the types of angles, and already you told that acute and obtuse angle. Okay. Okay, now again complementary angles and supplementary angles. Tell me which are the complementary angles. The angles that have the sum as 180 degree. Two angles whose sum is equal to 19 means 180. It is supplementary. Yes, Supplementary में 180 होता है and complementary में क्या होता है 90 degree. 90 डिग्री होता है। दो एंगल की सम अगर 90 डिग्री है तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल की सम अगर 180 है तो उसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री। ओके, अभी यहाँ पर देखो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा जो प्ले फेयर एक्सियम हमने पढ़ा। okay, कि जो एक वर्जन था, जो फिफ्थ पोस्टुलेट का जो वर्जन मॉडिफाइड वर्जन था प्ले फेयर एक्सियम, राइट? तो प्ले फेयर एग्जाम में पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट दिया है। देखो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट दिया वहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में तो वहां पे कहीं पर भी बोला नहीं है कि वहां पर दो लाइंस पैरेलल है। वहां पर क्या बोला है कि दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड अगर 180 से लेस है उन इंटीरियर एंगल की सम, तो वो लाइंस मतलब कहीं ना कहीं पे जाके मिलेंगी, है ना, इंटरसेक्ट होगी। तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ उस कंसेप्ट से ही हमें पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मिला। ओके, अभी यहाँ पर देखो डेली लाइफ में हमें बहुत से एग्जांपल देखने पड़ते हैं, जैसे कि अभी बेसिक टर्म्स हम पहले देख लेते हैं। अभी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, क्योंकि लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करते हैं तो सबसे शुरुआत में हम देखेंगे पॉइंट। क्या डेफिनेशन होगी पॉइंट की? So may I tell? यस। A point is something that does not have any dimension. नहीं नहीं नहीं, वो डेफिनेशन अभी यूक्लिड की डेफिनेशन नहीं, अभी एक्चुअल डेफिनेशन चलेगी, है ना। यूक्लिड के चैप्टर में यूक्लिड के कंसेप्ट आएंगे, यहाँ पर हमें एक्चुअल कंसेप्ट इस चैप्टर में जो हम अभी यूज करते हैं ना वही कंसेप्ट यूज करने। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? A dot on a plane, a dot on a plane is called as point. Okay, understand ना? कोई भी प्लेन पे अगर आप एक डॉट लेते हो, a single dot, then that dot is called as point. Understand? And then next concept, line segment. What is meant by line segment? Tell me. So may I tell? Yes. A line segment is the line which has two endpoints. Line which is two endpoints. No. We can say a part of a line. A part of a line having two endpoints. ओके, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या है, एक पार्ट है ना। इट इज जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइन, इट इज नॉट अ कंप्लीट लाइन, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन having two endpoints. Then tell me the definition of line. What is the line?
क्या होती है लाइन? Who will tell me what is a line? So may I tell? Yes. So line is a collection of dots which can be extended from both the sides. Line is a Collection of dots. collection of dots. Okay, some part it is right. Some part of this. Jill, you just try to say what is the definition of line? Line is a collection of points that can be extended in both the directions. But as per your definition, suppose these are the points. So this is called a line. Straight collection of lines. Straight collection. See, these points are called as non-collinear points. So what we can say, collection of collinear points on a straight path, we can say that it is a line. Okay, or we can say consecutive collection of collinear points in a straight path, we can say it is a line. Line की definition ऐसे बना सकते हैं, ये consecutive one after another dot, और वो डॉट भी कैसे होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट होना चाहिए वो भी, इन अ स्ट्रेट पाथ. So that collection of that even points, what we can say, it is a line. Then tell me definition of ray. What is a ray? So may I tell? Yes, Jill. So ray is a line which is extended from only one point. Ray is a line? No, ray is different. Ray is not line. Ray is not line. A part of a line, what we can say, a part of a line with one end point is called as a ray, because it is also a part of line. We cannot say it is a line. Same as line segment, what we can say, line segment is also a part of a line with two end points. Understand? What we can say, line segment, a part of a line with two end points. Same as ray, what we can say, ray is also a part of a line having one end point. Understand? So here, how to represent this line segment? Line segment, suppose line segment AB we are reading. तो लाइन सेगमेंट को आपको कैसे लिखना है? नोटेशन फॉर्म में AB के ऊपर बार करना है आपको. ओके, जैसे कि सपोज आपका लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट AB. This is line segment AB. In general, how we are writing? The whole word we are writing line segment AB, but it is taking too much time. So in notation form, if you want to write, just simply write down AB and just make one bar on the top of this AB and read like this, line segment AB. और अगर आपको लाइन शो करना है, लाइन AB क्या शो करना है आपको? लाइन AB सपोज. तो नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? AB के ऊपर एक लाइन का सिंबल बनाना है आपको. Just make a symbol of line above the AB. So it's called a line AB. और अगर आपको रे रीड करना है, रे, suppose this is ray PQ. Suppose it is ray PQ. रे PQ अगर आपको रीड करना है तो कैसे करना पड़ेगा आपको? PQ, इसके ऊपर रे का सिंबल, जस्ट सिंबल ऑफ द रे. अंडरस्टैंड? नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखना है आपको? Yes, sir. ये देखो यहाँ पर सेम दिया है नोटेशन फॉर्म में AB. ओके, the meaning will be clear from the contents that sometimes small letters
L, M, N, etc will be used to denote lines. जनरली हम लाइंस के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं, लेटर्स, so what we are using, L, M, N. We start with the L, M, N. Okay, as the initial name we know that lines. So L, from L we will start L, M, N. Like this we will denote the line. Generally we are denoting with the all alphabets, but generally what we are using, this, from this words we are starting L, M, N. Understand? If three or not more points lie on the same line, they are called as collinear points. ये देखो आपके पास ये डेफिनेशन मिल गई आपको कोलिनियर पॉइंट्स की. अगर 3 और उससे भी ज्यादा पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर होंगे तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. ओके, एंड नॉन कोलिनियर से क्या बोलोगे आप? 3 or more points which does not lie on same line are called as non-collinear points. So these are the two definitions of collinear and non-collinear. Understand? Recall that an angle is formed when the two rays originate from the same end point. देखो एंगल का आपको पता होगा, एंगल कैसे बनता है? एंगल इज मेड बाय टू रेज. यहाँ पर देखो दोनों रेज का ओरिजिन कहाँ पर होता है? एक ही पॉइंट होता है. देखो ओरिजिन ऑफ बोथ दैट रेज इज फॉर वन पॉइंट. So by two rays we get angle. Okay, the rays make an angle are called as arms of the angle. तो ये जो rays होते हैं उनको rays नहीं बोलते हैं. When both the rays join, that time it is angle, and that time we can say it is arm of that angle. उसे हम बोलेंगे arms of the angles. Okay, और जो end point होता है दोनों का common point उसे बोलते हैं हम vertex. What we call it as a vertex. You have studied some different types of angles such as acute angle, right angle and obtuse angle. Acute angle कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से लेकर which have 90 डिग्री degree के less than 90. हाँ, means more than 0 and less than 90 is called as acute angle. Right angle मतलब exactly 90 डिग्री और obtuse angle मतलब more than 90 and less than 180. Than 180. Okay, that is called as obtuse angle. Then straight angle exactly 180 degree or reflex angle more than 180 and less than 360. Then 360 degree. It is called as reflex angle. Okay, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. स्ट्रेट एंगल तो हो गया. स्ट्रेट एंगल मतलब 180. रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180 एंड लेस देन 360. अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने देखा है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? टू एंगल्स whose sum is 90 are called as complementary angles. और supplementary angles मतलब क्या होता है? Two angles whose sum is equal to 180 degree. So these are called as supplementary angles. अभी हमें स्टडी करना है adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं? Okay, we can say adjacent also or we can say consecutive angles also, means one after another. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल कोई भी नहीं होती. यहाँ पर एक कंडीशन दिया होता है जैसे कि टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए. दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म. यहाँ पर देखो एबीसी जो एंगल है ना, इस एंगल में जो बी पॉइंट है ये कॉमन वर्टेक्स है एंड बीडी आर्म इट इज कॉमन एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड. और जो नॉन कॉमन आर्म्स है जैसे कि आर्म बीसी एंड आर्म एबी बीए, ये दोनों ही अपोजिट साइड में. देखो दोनों सेम साइड में नहीं है. ऐसा में so this is the initial important things for that adjacent angles. Okay, अभी फिगर 6.2 में देखो एंगल ABD. ये देखो एंगल ABD और एंगल DBC दोनों ही एडजेसेंट एंगल है. ठीक है,
और रे बी डी इज देयर कॉमन आर्म। रे बी डी क्या है, उसकी कॉमन आर्म है। द पॉइंट बी इज देयर कॉमन वर्टेक्स। रे बी एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक कंप्लीट वैल्यू तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो होल है वो होल के अगर हमने दो पार्ट्स किए तो दोनों पार्ट्स की एडिशन होल के बराबर होती है। सेम एज यहाँ पर भी अप्लाई होगा, जैसे कि एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी। ओके, द सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। So this is the property ABC is equal to ABD plus DBC. Okay, so these all we are studying about adjacent angles. Understand? Yes, sir. Angle Yes. ABC and angle BD, ABD are not adjacent angles. अगर आप बोलोगे एंगल ABC, ये पूरा एंगल, और एंगल ABD, इनको हम adjacent एंगल नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस एंगल को कंसिडर करोगे एंगल ABC और एंगल ABD, तो यहाँ पर AB कॉमन है, AB कॉमन है, वर्टेक्स B इज आल्सो कॉमन, बट नॉन कॉमन आर्म्स जैसे कि BD और BC ये दोनों ही अपोजिट साइड में नहीं, वो सेम ही साइड में, देखो दोनों क्या है, सेम साइड में। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। हमने क्या कंडीशन देखा था, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कहाँ पर होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए, सेम साइड में नहीं होना चाहिए। अगर आपने एंगल ABC और एंगल ABD इसको कंपेयर किया तो इसमें AB तो कॉमन है, आर्म AB कॉमन है, B इज आल्सो कॉमन, बट नॉन कॉमन जो है BD और BC ये दोनों सेम ही साइड में, इसीलिए ये क्या हो सकता है, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंसेप्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अभी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स में दो एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई वन रे स्टैंड होगा, देखो क्या कंसेप्ट बोल रहा हूं मैं आपको, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई वन रे स्टैंड होगा, जैसे कि लाइन AC पर BD रे स्टैंड हो रहा है, तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, एडजेसेंट एंगल ABD और एडजेसेंट एंगल DBC। आपको पता है कि जो भी एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसका कितना डिग्री होता है, 180, क्योंकि वो एक स्ट्रेट एंगल होता है, राइट? स्ट्रेट एंगल की सम कितनी होती है, 180। तो यहाँ पर ये दो एडजेसेंट एंगल की सम भी कितनी होगी, 180। मींस एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। तो इन दोनों ही एंगल की सम अगर 180 है तो हम क्या बोलेंगे, द सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो जो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, व्हाट वी कॉल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। if the non-common arms BA and BC in the form of line, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अगर एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट, तो जो एडजेसेंट एंगल जैसे कि ABD और DBC इनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, Yes. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सपोज दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि लाइन, सपोज दिस लाइन एंड दिस लाइन, when it intersect, so that time we get four angles। जैसे कि सपोज ये लाइन L और लाइन M
अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें कितने एंगल्स मिलते हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो एंगल्स एक दूसरे के सामने हैं जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, ये दोनों ही इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इन एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। And vertically opposite angles are equal when two lines are intersect in one point. Okay, when two lines intersect in one point, then what we can say? These are the vertically opposite angles. Understand? Okay, understand है vertically opposite angles? तो यहाँ पर देखो अगर लाइन L और M इंटरसेक्ट कर रहे वन पॉइंट में, तो एंगल 1 and 3 are equal, एंगल 2 and एंगल 4 are equal. तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर कौन से इस फिगर में एंगल AOD और एंगल COB, ये दोनों ही अपोजिट है, इसीलिए दोनों को देखो सेम सिंबल दिया है यहाँ पर, सेम सिंबल। और एंगल देखो एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन सेम सिंबल। अंडरस्टैंड हुआ? Yes, sir. हाँ, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी intersecting lines and non-intersecting lines. ओके, यहाँ पर देखो फिगर्स में दिया है intersecting lines और ये है non-intersecting lines। क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ मुझे। What are the difference between this? May I tell? Yes. Sir, they are not. Simple है देखो, there is one point common in intersecting lines and there is no point common in non-intersecting lines or we can say parallel lines. इसमें कोई भी एक पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन पॉइंट कॉमन होता है और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई भी एक पॉइंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, रिकॉल द नोटेशन ऑफ लाइन that it is extend indefinitely in both direction. Line PQ and line RS in figure 6.5 first are intersecting line. These are the intersecting line. And figure 6.5 second, these are the non-intersecting lines. Line PQ and RS, देखो ये PQ और RS इनका intersecting point ये है, तो ये intersecting lines है। So note that length of the common perpendiculars at different points are these parallel lines is the same. देखो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया आपने, सपोज ये दो लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया आपने कहीं पर भी, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस सेम होता है। दैट डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। So this equal length is called as distance between two parallel lines. तो जो equal length होती है उसे हम बोलते हैं distance between two parallel lines. Understand? Okay. Then next part we will see pairs of angles. In section 6.2 we have seen definition of some angles such that complementary angle, supplementary angles, adjacent angle, linear pair of angles. Okay, so can you think some of the relation between these angles? कोई relation है इसमें, इन सभी angles में कुछ relation है? नहीं है तो हमें find out करना पड़ेगा। Let us find out the relation between the angles formed when a ray stand on a line. अगर एक straight line के ऊपर अगर कोई ray stand होता है तो क्या relation हो सकता है इन angles के in between? जैसे कि line AB, this is the line AB and OC is the ray. Okay, so angles, which are angles it is formed? Angle AOC and angle BOC, इनकी सम कितनी हो सकती है? मतलब एंगल AOB कितना आएगा? यस, स्ट्रेट एंगल है AOB, तो ये 180 होगा, राइट ना? इट इज
180। 180 degree. हाँ, मतलब यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट मिला, आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल है। द एडजेसेंट एंगल विच मेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनकी सम कितनी होती है? 180। अंडरस्टैंड? ये देखो, इसकी सम कितनी होती है? 180। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी हैव स्टेट द फॉलोइंग एक्सियम। तो क्या एक्सियम मिला आपको? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन then the sum of two adjacent angle so form is 180 degree। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एक वन रे स्टैंड होता है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होती है उनकी सम कितनी होती है? 180। आपने देखो ये एक एग्जाम क्रिएट किया, एग्जाम मिला आपको एक, ठीक है। रिकॉल व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, then they are called a linear pair of angles। ओके, अगर दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 है, तो वो एंगल्स भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? करके देखो, ट्राई करके देखो, आप एडजेसेंट एंगल्स ड्रॉ करो कुछ इस तरह से कि वो दो एडजेसेंट एंगल की सम कितनी होनी चाहिए? 180। कितनी होनी चाहिए? 180। तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है क्या आपको? वो चेक करो। दोनों ही रिवर्सिबल है। देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और आप बोलोगे टू adjacent angles, if they are supplementary, then that pair is called as linear pair of angles। Understand? In axiom 6.1 it gives that a ray stands on a line. From this given we have concluded that sum of two adjacent angles so form is 180। देखो एग्जाम 6.1 में क्या दिया उन्होंने? व्हाट इज गिवन? कि अगर एक रे स्टैंड होता है लाइन के ऊपर, तो ये क्या है आपके पास? ये गिवन गिवन थिंग है। तो फ्रॉम दिस हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल की सम है वो कितनी हो सकती है? 180। क्योंकि स्ट्रेट एंगल की सम कितनी होती है? स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो ऑब्वियसली उनकी जो सम होगी वो कितनी होगी? 180। दोनों एंगल की सम कितनी होगी? 180। So can we write axiom 6.1 in the other way? That is, take the conclusion of axiom 6.1 as given and the given as the conclusion. So it becomes, if the sum of two adjacent angle is 180, then a ray stand on a line, that is non-common arms from a line। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हम रिवर्सिबल ले सकते हैं। आया समझ में? इस एग्जाम का हमें फर्दर यूज करना है, तो ये इसेंशियल है, आपको समझ में आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए समझ में। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक रे स्टैंड होता है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर वन रे स्टैंड होता है, जैसे कि एक रे स्टैंड हो रहा है, ठीक है, जैसे कि सपोज ये ए बी स्ट्रेट लाइन है और ये ओ सी रे है, तो आप कैसे बोलोगे डेफिनेशन एग्जाम की? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी, देन द एडजेसेंट एंगल, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन से हुए? एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों की सम कितनी होगी? 180। तो उन दोनों ही एंगल की सम कितनी होगी? 180। रिवर्सिबली क्या बोलोगे आप? द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इफ इट इज 180, देन देयर विल बी अ रे stand on a straight line। Understand? Now you see that exam 6.1 and statement A,
are in the same, the reverse of each other. दोनों ही रिवर्स है एक दूसरे के. Okay, we call each as a converse of others. हम इन दोनों को बोलेंगे कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कन्वर्स है. ठीक है, कन्वर्स मीन्स व्हाट, रिवर्स एक्सियम. हाँ, जो भी एक्सियम है आपका उसका रिवर्स एक्सियम. ठीक है. We do not know whether the statement A is true or not. Let us check. Draw adjacent angles of different measures as shown in figure 6.7. Keep the ruler along one of the non-common arms. In each case, does the other non-common arms also lie among the ruler? आप अलग अलग एंगल्स लेकर फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 60 और ये 30. ओके, इसके ऊपर आप ये एंगल रखो, तो इन दोनों में देखो ये है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स. इनकी सम होती है 90. इनकी सम कितनी हो रही है, इन दोनों एंगल की सम कितनी हो रही है 140. इन दोनों एंगल की सम कितनी हो रही है 180. और यहाँ पर देखो ये 3 एंगल्स यहाँ पर, जैसे कि आपने 70 प्लस 150 किया, कितनी हो रही सम 220. ये एंगल कितना आएगा, टेल मी फास्ट, हाउ मच इट इज. 360 में से 220 माइनस करो, कितना आएगा 140 डिग्री. ओके, 140 प्लस 70 कितना होगा 210. कहीं पर भी दो एडजेसेंट एंगल की सम 180 आ रही क्या, कहीं पर भी नहीं आ रहा है. सिर्फ एग्जांपल नंबर 3 में 180 आ रहा है. तो आप खुद भी ट्राई करो, अलग अलग मेजरमेंट लेके दो एडजेसेंट एंगल की सम अगर 180 है तो वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगी, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो एंगल्स फॉर्म होंगे. अंडरस्टैंड. तो आप दो अलग अलग एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स के फॉर्म में अलग अलग मेजरमेंट लेकर चेक करो आप, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म मिलेगा. अंडरस्टैंड. Like this, we find that only in figure 6.7 both the non-common arms lie among the ruler. That is the point A, O, B lie on the same line. Say ray OC stand on it. Also see that, okay, एक ही मिल रहा है आपको. For example, from this what we conclude that statement A is a true. तो ये 2-3 एग्जांपल्स हमने जो चेक किया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, अलग अलग एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल्स हमने लेकर देखे. तो ये हमें प्रैक्टिकली क्या मिला, हमें प्रूफ मिला. ओके, बाय दिस प्रैक्टिकल प्रूफ वी कंसीडर दैट स्टेटमेंट ऑफ द एक्सियम 6.1 इज ट्रू. ओके, रिमेनिंग दैट एक्सियम 6.2 we will see tomorrow.